अगर सेफ्टी के मामले में कंसर्न करें, कोई पेरेंट अब फैमिली कोई कंसीडर कर रही है कि उनका जो बच्चा है वो जापान जाके पढ़े, तो पेरेंट्स का एक बड़ा कंसर्न रहता है कि यार जब कोई भी कंट्री सेफ़ है कि नहीं है। जैसे मैंने अभी तक स्टडी किया, जैसे मुझे पता चला, क्योंकि जापान में है कि सेफ्टी है, सेफ्टी पूरी है। अगर आपका कोई क्राइम भी होता है तो उसका सॉल्यूशन भी मतलब जल्दी हो सकता है। Education Japan. Yeah. So you were saying you are. So it's like a bilingual consultant. I had been considering about studying in Japan through MEC scholarships, but I didn't get it. So I kind of dropped the idea now, considering that I might not be able to pass it. Because the only way I going to study in Japan would be through some 100% or at least 90% scholarship, not covering some tuition fees. That's why. Okay. And what about your masters? So you said that you are looking for 100% scholarship. Right, that's So correct. are you still considering doing masters over that if you get that 100% scholarship? Yeah, sure, why not? And you said you tried next. Yes, I have Up to tried. what level you succeeded at? When I tried next, the exam was around like N2 level, but at that time I hardly had N4, so that's why I could not succeed at that time. But yeah, maybe because when I was in university, the MEC scholarship came in our university itself, so we didn't have to apply separately through the embassy route. It was from university itself. Right. And the thing is, what do you believe? What could be some stereotypes? Like you were considering Japan for your education, but आपको क्या लगता है कि क्या वो stereotypes या apprehensions होंगे जो लोगों को लग रहे होंगे कि यार जापान हम इसलिए नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम है? Right. The first one is definitely food, because Indian people might think that there's not a lot of vegetarian food available there. However, there are quite many Indian restaurants, right? But yeah, at the end of the day you have to cook yourself because you can't be buying every day. That's one thing. Second would be a lot of people think that there is still racism in Japan because there's this Gaikokujin fear that is present. So that are the two stereotypes I feel there are. So food, and you said some racism. What about Could be. what about language? Language, I think a lot of people who actually go to study in Japan do know Japanese to some extent. However, yes, that could be one issue. But yes, if there is like cities like Tokyo, people are still able to speak in English, but in the rural parts, all the people still speak in Japanese. So that could be one problem. लास्ट क्वेश्चन, कोई आप ऐसा फैक्ट बता सकते हैं जो आपको लगता हो बाकी लोगों को नहीं पता होगा अबाउट जापान? Yeah, actually, a lot of people do study Hindi as well in Japan. I have met some friends who actually came to India, traveled to my university there and did some Hindi courses for 6 months. Although people might be aware, but this is one fact I could think of at the moment. That's it. Thank you for your time. What's your name? My name is Vaibhav. So जापान अगर सेफ्टी के मामले में कंसर्न करें, कोई पेरेंट अब फैमिली कोई कंसीडर कर रही है कि उनका जो बच्चा है वो जापान जाके पढ़े, तो पेरेंट्स का एक बड़ा कंसर्न रहता है कि यार जब कोई भी कंट्री सेफ है कि नहीं है। नहीं देखो, जापान उस रेस्पेक्ट में आपको कैसे दिखाई देता है? जैसे मैंने अभी तक स्टडी किया, जैसे मुझे पता चला, क्योंकि जापान में है कि सेफ्टी है, सेफ्टी पूरी है। अगर आपका कोई क्राइम भी होता है तो उसका सॉल्यूशन भी मतलब जल्दी हो सकता है। जापान की सेफ्टी मतलब इंडिया से थोड़ी बेटर ही है, जहाँ तक मैंने मतलब स्टडी की, क्योंकि मैं एक्चुअली N1 सर्टिफाइड हूँ। ओह ग्रेट। इसलिए मुझे पता है कि मतलब थोड़ा बहुत इतना पता है, इतनी नॉलेज नहीं है, बस इतना पता है कि जापान सेफ्टी में, डेवलपमेंट में, और जैसे जैसे वो मतलब टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से अगर हम जापान में मतलब जाएंगे तो हमें भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ का पता चलेगा, नई नई मतलब डेवलपमेंट हम कर सकेंगे, ताकि हमें नई नई टेक्नोलॉजी का पता चल सके और हम उसके बारे में मतलब और हमें जॉब फील्ड मिल सके, जैसे अनदर कंट्री में मिल सकती है। जैसे कनाडा में अब जापानीज जगह जाती है, लंदन में जापान के वर्क मतलब जापानीज वर्क्स होते हैं, उस हिसाब से हम हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी भी बढ़ती है।
आपने कहा आप N1 सर्टिफाइड हो, इसमें कितना टाइम आपको लगा, कैसे कैसे आपने प्रिपेयर किया? एक्चुअली मुझे ना 3 साल लगे N1 क्रैक करने में। तो मैंने मतलब पहले मुझसे मेरा इंटरेस्ट था जापानीज़ में, तो मैंने कवर किया, मतलब मैंने पता किया कि कैसे कैसे होता है, जापानीज़ कैसे होती है, उसके कितने लेवल्स होते हैं, तो फिर मुझे पता चला कि इसके मतलब जैसे 5 लेवल्स होते हैं। फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट्स में पता किया, काफ़ी डेमोस लिए, फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट पे मतलब इंक्वायरी की, फिर वहाँ से मैंने N2 तक किया, N1 मैंने सेल्फ किया। अच्छा, और जैसे आपका पर्पस क्या था, क्यों आपने N1 किया? मैंने N1 इसलिए किया क्योंकि के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटी है जापान में और सैलरी है, पैकेज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हायर है। अगर आप IT फील्ड में जाओगे तो उसका पैकेज आपको काफ़ी हायर मिलेगा। तो आप जॉब सर्च कर रहे हैं? हाँ जी, मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ। मैंने काफ़ी जॉब्स देखी हैं जापान में IT में, और मैं SSW जैसे SSW प्रोग्राम्स होते हैं मैं उनमें भी हूँ। तो अगर कोई पर्सन कंसीडर वो US भी देख रहा है, UK भी देख रहा है और जापान भी है, मतलब अगर ये कंट्रीज है US, UK, कनाडा, जापान, तो आप लोग क्या प्रेफर करेंगे? कौन सी कंट्री ज़्यादा बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकती है? देखो लेवल होता है, अगर जैसे कि मतलब पर्सन का क्या लेवल, उसके बेस पे उसको रेकमेंड करना चाहिए। जैसे मान लो अगर किसी का हायर लेवल है N2 N1, तो वो जापान जाके अच्छी उसको मिल जाएगी। लेकिन उसका N3 लेवल है तो उसको जैसे बाहर कंट्रीज में लंदन, कनाडा हो गया, इन साइड में उनको सैलरी अच्छी मिलती है। ठीक। सो थैंक यू। हम लोग एजुकेशन जापान से हैं, and I suggest you visit the channel. You would be there. Okay. And all the best for your future journeys. Thank you for Thanks your a lot. time.